A very good day to all students. Today I am taking chapter 8 of your class 11 accountancy book, and the chapter name is Origin of Transactions, Source Document of Accountancy. इसको कराने से पहले I will tell you one thing that if you have not subscribed the channel, please subscribe Ramda Saraswati Senior Secondary School and press the bell icon for getting latest videos immediately. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Now this chapter belongs to source document of accountancy. The learning objective of this chapter, it means after studying this chapter we will able to understand source document of accountancy and vouchers, meaning types of vouchers and preparing the vouchers. So origin of transactions. Origin of transactions means where a point transactions are started. For various transactions in business, for example, goods purchased, goods sold, cash received, cash paid, and so on. Each transaction must be supported by a documentary evidence such as cash memo, cash receipt, invoice. इट इज़ कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में होती है, कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो भी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं. These documents are the first record about the detail of a business transaction. ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का फर्स्ट रिकॉर्ड होता है. इन्हीं डॉक्यूमेंट से वी स्टार्टेड जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो I am telling you some of the most common source documents. So first one is cash memo. When a trader sell goods for cash, he give a cash. When he purchase goods for cash, he receive a cash. Detail regarding the item quantity, rate and total price is mentioned in cash memo. जब हम गुड्स खरीदते हैं पैसा देते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो पैसा लेते हैं, तो जो रिसिप्ट होती है that is called cash memo. In this slide you can see an example of cash memo which is issued by the Global Watch Company. Quantity 3 Titan Regalia D06, 2 Titan Raga 108. The total amount 12,300 less discount 10%. This is the example of cash memo. यानी कि we have purchased anything and what amount we have paid. जितना पैसा हमने उसका पे करा है, it is refers as a cash memo. In the same slide you can see invoice and bill. When a trader sell goods on credit, he prepare a sale invoice which contain name of the party to whom goods are sold, the rate, quantity and the total amount of sale. The original copy is sent to the purchaser and its duplicate copy is kept by the seller. जब हम कोई गुड्स उधार बेचते हैं तो उस गुड्स में उस पार्टी का नाम, क्या उसको सामान बेचा है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका टोटल अमाउंट हो गया है. जब हम इस तरीके का बिल प्रिपेयर करते हैं इट इज कॉल्ड इनवॉइस और बिल डॉक्यूमेंट. This bill document is prepared generally in 2 copies. The original copy is given to the buyer and the duplicate copy, carbon copy, is kept by the seller for its future purpose. In this slide you can see a
example of invoice which is issued by the Malhotra Electronics. इसमें देखिए name of customer, terms is given 5% cash discount if payment is made within 30 days. Description, different types of washing machine, the price, total amount, sale tax which is now converted to GST, handling and delivery charges, and total amount. At last you can see 4 alphabets E and OE. It means errors and omission expected. It means अगर बिल बनाते वक्त कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो वो दोनों पार्टी को बाद में माननी पड़ेंगी. एंड साइंड बाय द मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स. It is an example of invoice document, or we can say bill document. It is prepared when we sold goods on credit. Now, in this slide you can see receipt. When a salesman, when a trader receive cash from a customer, जब एक सेलर, एक कोई व्यापारी सामान बेचने वाला किसी कस्टमर से कैश रिसीव करता, ही इशू अ रिसिप्ट जिसमें डेट, अमाउंट और उस कस्टमर का नाम होता है. इसको हम कहते हैं रिसिप्ट डॉक्यूमेंट. द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रिटेन कर ली जाती है फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस एंड बिल. Another debit note, when we return goods to supplier. जब हम एक गुड्स अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, परचेज रिटर्न, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स. हम एक डेबिट नोट बनाते हैं जो अपने सप्लायर को गुड्स के साथ साथ वापस कर देते हैं. इसमें उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि कितना डॉक्यूमेंट है, कितना गुड्स है, क्या उसका प्राइस है, क्या उस पर डिस्काउंट वगैरह है. इट इज डेबिट नोट. kept in mind, debit note when we return goods to supplier. It means it is issued on the condition of purchase return. Another one, credit note, when we receive goods from the customer which we have sold to him. It means sales return. Then a copy is prepared that is called credit note. इसी तरीके से अगर कोई गुड्स हमने अपने किसी कस्टमर को बेचा है और उसने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया है तो ये है क्रेडिट नोट. नेक्स्ट, पे इन स्लिप. सपोज यू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, तो बैंक का कैशियर उसका एक पोर्शन एक स्टैंप लगा के साइन करके हमें वापस कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप. चेक, वी ऑल हैव नोन. चेक इज एन document unconditional which is given or drawn to a bank on which we give direction to paid money on receipt of the check. चेक एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल है, जिसमें एक बैंक को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो ये पर्सन उस बिल को लेके आ रहा है उसका पेमेंट उसको करा जाए. दैट इज कॉल्ड check. It is an unconditional document. Now in this slide you can see a specimen of a check. I think all have seen the specimen. This specimen also you have to prepare on your notebook. Now we have came to the second part of this chapter, voucher. Voucher means a document, source document on the basis of we have to record journal entries. It is called voucher. Each voucher is put serial number and relative source document are attached with the voucher. कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होता है तो वाउचर एक तरीके का एक एविडेंस है जिससे हम आगे की ट्रांजैक्शंस को बनाते हैं.
तो इसको हम कहते हैं बाउचर। इस पे एक सीरियल नंबर वगैरह अटैच होता है, और जो भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, उस बाउचर को उसके साथ पिनअप कर देते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड बाउचर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज अ सपोर्ट टू द बाउचर, ये बाउचर को सपोर्ट करता है। एंड बाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, इट मीन्स बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। Another one, it is not prepared to record transaction, but voucher is prepared for the purpose of recording of transactions. Source document it contain full details, इसमें पूरी डिटेल होती है ट्रांजेक्शन की। Voucher it emphasizes which account is to be debited and credited, इसमें वो चीजें आती हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। Source document it is a evidence of the transaction, and voucher is a document for correct recording of a transaction. So at last in this slide I have told you, first of all, origin of transactions have came. They have many types: check, pay-in slip, credit note, debit note. These are having separate format, and these format must be in a uniform way. We prepare voucher which is serially arranged, जिन वाउचर से हमें आगे उन ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, origin of transaction. Next we will transfer all that origin into voucher. Now different types of voucher. Voucher may be classified into two categories. जो हमारे वाउचर हैं इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर वो वाले वाउचर जिसका रिलेशन कैश से होता है, एज द नेम सजेस्ट, कैश वाउचर। सो कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट। अगर कोई कैश पेमेंट हमने करा है या कोई कैश रिसिप्ट हमने करा है तो हम बनाते हैं कैश वाउचर्स। अनदर वन, नॉन कैश वाउचर। दीज नॉन कैश आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर। इस नॉन कैश वाउचर में, इस ट्रांसफर वाउचर में कैश का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हम क्रेडिट पे कह सकते हैं, अगर कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है वी प्रिपेयर नॉन कैश वाउचर, एंड इफ transaction is based on cash we will prepare cash voucher. Cash voucher are prepared for cash transaction whether they are belong to cash receipt or cash payment. These are of two types: debit voucher. डेबिट वाउचर बनाया जाता है जब हम कैश किसी को पेमेंट करते हैं, और क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है जब हम कैश किसी से रिसीव करते हैं। Some of the example of cash payment और डेबिट वाउचर: कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वर्कर की सैलरी वगैरह देना; कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना; कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करना; कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स; कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। ये जो एग्जाम्पल हैं ये कैश पेमेंट के हैं, और इसके लिए वी प्रिपेयर डेबिट वाउचर्स। द डेबिट वाउचर कंटेन्स जनरली डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, जिस डेट को हम वो वाउचर बना रहे हैं; सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर, जनरली ये सीरियल नंबर प्रिंटेड होता है; नेचर ऑफ अकाउंट, किस अकाउंट से रिलेटेड है; रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट; एक उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन; नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसका नेट अमाउंट, कितना पैसा हमारे पास से गया; एंड सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। तो ये हमने बताया अभी डेबिट वाउचर के बारे में कि डेबिट वाउचर हम बनाते हैं कैश पेमेंट से रिलेटेड, और
क्या क्या चीजें डेबिट वाउचर में हम कंसिडर कर सकते हैं. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर. इसमें आप देखिए डेबिट वाउचर का एक फॉर्मेट है विच इज इशूड बाय द मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी. उसका प्रिंट है, वाउचर नंबर प्रिंट है, क्या क्या उसमें उसका अमाउंट है, सिग्नेचर है और एक उसका काउंटर फाइल है विच इज गिवन टू द पर्सन हु रिसीव द मनी. नाउ अनदर वन, credit voucher. Credit voucher is prepared when we receipt of cash. ये वो वाले वाउचर हैं जब हम कैश को रिसीव करते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट वाउचर्स: कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कैश सेल ऑफ गुड्स जब हम गुड्स को बेच देते हैं, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं, कैश रिसिट फ्रॉम डेटर्स जब हम अपने डेटर से पैसा ले लेते हैं, एंड विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक जब हम पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं. तो दीज आर द वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन वी रिसीव कैश फ्रॉम व्हाटएवर एनी सोर्स. इफ कैश comes into the business we prepare credit voucher. किसी भी सोर्स से अगर हमारे पास पैसा आ रहा है but money should be come into the business then we will prepare credit vouchers. Now what are the content of credit voucher? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, वाउचर जिस डेट को हम बना रहे हैं उसकी डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड किस अकाउंट से वो रिलेटेड है उसका नरेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर. कंटेंट सेम है, आइदर यू प्रिपेयर डेबिट वाउचर और यू प्रिपेयर डेबिट वाउचर. कंटेंट सेम है बट यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग, क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी रिसीव कैश एंड डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी पेड कैश. बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्रेडिट वाउचर उस केस में बनाते हैं इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, अगर कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, एंड डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, जब बिजनेस में से कैश जा रहा है. In this slide you can see the format of credit voucher of Kohinoor Electrical Company. Now after the cash voucher we can move non-cash voucher or transfer voucher. These voucher is prepared when there are no relation of cash, जहाँ ना कैश हमारे पास आएगा और ना कैश हमारे पास से जाएगा. अगर हमारे पास कैश आएगा तो हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, अगर हमारे पास से कैश जाएगा तो हम डेबिट वाउचर बनाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें ना कैश हमारे पास आ रहा है और ना कैश हमारे पास से जा रहा है, देन वी प्रिपेयर नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर. सम एग्जाम्पल: क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ गुड्स, गुड्स उधार खरीदने पे या बेचने पे, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का उधार खरीदना या उधार बेचना, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स को उधार खरीदना या उधार बेचना, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज और सोल्ड, जो गुड्स हमने खरीदा या जो गुड्स हमने वापस कर दिया, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट. ये वो सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारे बिजनेस में ना कैश कोई आया है और ना कैश कोई चला गया है. तो इसमें हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर. इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमें वर्कर की सैलरी देनी थी लेकिन हमने वर्कर की सैलरी अभी पे नहीं करी है, then we will prepare cash voucher. If we paid salary
then debit voucher. But if we not paid salary, it means we will prepare non-cash voucher. Contents, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं? डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डेट को हम वाउचर बना रहे हैं, वाउचर का सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट विच वन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, उस अकाउंट का नाम जो डेबिट या क्रेडिट होना है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, नेट अमाउंट और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर. सो in this slide you can also see a transfer voucher which is prepared by the Kohinoor Electrical Company. So students, kept in your mind two type of voucher: cash voucher, non cash. Cash voucher, debit voucher, when we receive payment of cash. Credit voucher, not receipt and non cash, which are when prepared then no relation of cash. In this debit voucher, a document showing a transaction contain multiple debit और one credit, जिसके multiple debit होते हैं, एक से ज़्यादा डेबिट होते हैं और सिंगल क्रेडिट होता है तो डेबिट वाउचर, और जिसमें मल्टीपल क्रेडिट होते हैं और सिंगल डेबिट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट वाउचर. सो एट लास्ट आई विल टेकिंग अ रिकैप. Voucher is debt which support any documentary evidence, any business transaction. Voucher वो चीज़ है जो हमारे किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है. एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे हम अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं. ये वाउचर हमने देखे, कैश वाउचर भी हो गए, नॉन कैश भी हो गए. ऐसे वाउचर जिनसे कैश का हमारा रिलेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कैश वाउचर. कैश वाउचर में आपने देखा एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर. लेकिन कुछ ऐसे वाउचर होते हैं जिनका कैश से रिलेशन नहीं होता, जो क्रेडिट पे बेस होती हैं, उसकी हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर. सो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो you are able to give the answer of these short answer questions. I am telling you, why is the evidence provided by the source document importance to accounting? कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस, एक प्रमाण है. These documents are written and authentic proof of the correctness of recorded transaction. ये रिटर्न में होते हैं और इस बात का एक सबूत होते हैं, एक सबूत होते हैं कि ये कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है. दे ऑल्सो सर्व एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट. अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया है किसी तरीके का तो वी कैन प्रेजेंट एज अ लीगल एविडेंस. अनदर वन, व्हाट इज अ वाउचर? इमेजिनरी स्पेसिमेन हम बना सकते हैं. प्रिपेयर अ डेबिट वाउचर, एक डेबिट वाउचर बनाना है फॉर फर्नीचर परचेज जो हमने खरीदा है ग्लोबल फर्नीचर मार्ट से. एंड देयर आर सम वेरी शॉर्ट आंसर्स. नेम एनी टू सोर्स डॉक्यूमेंट. वी हैव सीन सो मैनी. कैश मेमो, इनवॉइस. इनवॉइस मीन्स व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. सो listen this video, and if you have any problem then you can ask me. So these are the very important documents which kept by the each businessman. So thank you very much students.